Assalamualaikum everyone. Myself Jan Javed Mughal, your chemistry teacher. So students, in the previous class we have dealt with the ionic bonding, and now there is another type of bonding, that is covalent bonding. You can clearly see here. So what basically the covalent bonding is? The covalent bonding is basically, in this bonding, there are no gain or loss of electrons by the atoms. Likewise, in the ionic bonding, we have dealt with the gaining and losing of the electrons, and then in result of the gaining and losing the electrons, the bond formed is known as ionic bond. But a covalent is formed by mutual sharing of electrons between two atoms. What does this mutual word mean? The mutual means any connection in which both of the opponents or both of the contestants may combine together to share anything. ठीक है? So म्यूचुअल का मतलब होता है कि जो दोनों तरफ से शेयरिंग हो रही है उसको म्यूचुअल शेयरिंग कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब हमारे पास दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करते हैं। द म्यूचुअल वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग द कोवलेंट बॉन्ड. This type of bonding occurs between two atoms of the same element or atom of different element. ये जो bonding होती है covalent bond, it may occur in the same elements and it also may occur in the different atoms or different elements. Okay. This bonding occurs primarily between non-metals. However, it can also be observed between metals and non-metals. This is mainly observed in the non-metals. यानी दो non-metals के दरमियान ज़्यादातर covalent bonding होती है. बट हमारे पास कुछ ऐसे metals और non-metals होते हैं जिनके दरमियान metals और non-metals के दरमियान भी bonding होती है. ठीक है. एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन एटम की. वी नो दैट द हाइड्रोजन कंटेन्स अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल एंड देयर इज अनदर हाइड्रोजन एटम. These two hydrogen atoms are unstable because for their diplet completion they need one electron and this also need one electron. So they cannot completely share or gain these electrons at all, but they can share their electrons mutually. Okay, you can clearly see here they are overlapped to each other and this electrons mutually shares with this and this electron shares with this atom. Now you can see clearly here in the between this they both have their diplet complete by sharing or mutually sharing the electrons with each other. So this type of bonding that is formed by the mutual sharing of electrons between the two atoms is called as covalent bond. Okay. Now moving towards our next part, we have different types of covalent bond. Okay. Types of covalent bond. There are basically three types of covalent bond depending upon the uh, number of bond pairs. As we know that the covalent bond is formed by mutual sharing of electron between the two atoms. The electrons of atoms that pair up to form chemical bond are called bond pair electrons. यानी कि अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर व्हाट इज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो हमारे पास पेयर बनाने के बाद एक केमिकल बॉन्ड रिजल्ट कर रहा हो, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो किसी और एटम के साथ केमिकल बॉन्ड बनाए, उन इलेक्ट्रॉन के पेयर को बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स. अब डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा एटम कितने बॉन्ड पेयर्स के बाद कितने बॉन्ड बना रहा है, तो उसके बेसिस पे हमारे पास तीन क्लासेस हैं, तीन टाइप्स हैं: सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. First of all, we are going to deal with the single covalent bond. You can see that the single covalent bond is formed by mutually sharing of one bond pair is called single covalent bond. यानी कि जब हमारे पास दो एटम्स के दरमियान खाली एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होने के बाद बॉन्ड बनेगा तो वो कहलाएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. सिंगल क्यों बोल रहे हैं? सिंगल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर को यूज करते हुए हमारे पास बॉन्ड बना है. ठीक है. सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल शॉर्ट लाइन. रिमेंबर दैट इट always represent as a single short line as you can clearly see here. एग्जाम्पल्स में हमारे पास क्या क्या आता है? फॉर्मेशन ऑफ एच एच, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जैसे कि अभी हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल की. इसके बाद हमारे पास HCl की एग्जाम्पल है, मीथेन की एग्जाम्पल है, CH4. ये हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल्स हैं. यहाँ पे अब हम एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल है. इसको अगर हम लोग देखें क्लास, तो हमारे पास आप लोग यहाँ देख सकते हो कि क्लोरीन एटम की जो लास्ट शेल होता है, इस लास्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वी हैव 7 इलेक्ट्रॉन. Why? Because chlorine is the group 7 element
And all the elements of group 7 have 7 electrons in their valence shell. So for the completion of their octet, they need 1 electron. So you can see clearly here, this chlorine also need 1 electron, and this also have 7 electrons and need 1 electron to complete its octave. So होता क्या है कि ना तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको लूज करेगा, अगर ये लूज करेगा तो उसके पास और कम हो जाएंगे, ठीक है, मगर ये तो स्टेबल हो जाएगा, फिर अनस्टेबल खत्म, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि हम दोनों आपस में म्यूचुअली शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि ना तो तुम स्टेबल हो और ना तो तुम अनस्टेबल हो, ना मैं अनस्टेबल हूँ, दोनों की जरूरत पूरी हो जाती है। तो क्या करते हैं, सेम जैसे हाइड्रोजन ने ऊपर ओवरलैपिंग की थी, म्यूचुअली शेयरिंग की थी, तो ये दोनों भी अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से म्यूचुअली शेयर करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स एट ऑल एंड दिस ऑल्सो हैज एट 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो नाउ अब देखो, इसका डुप्लेट भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। यानी कि इसमें कितने बॉन्ड पेयर्स इन्वॉल्व थे, वी हैव ओनली अ सिंगल बॉन्ड पेयर। इसमें देखो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पर हमारे पास यूज हुआ और बॉन्ड बनाने के लिए, यानी कि Cl bond with Cl. And why I am using the single line to represent, because it is single covalent bond. And single covalent bond क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्डिंग हुई है वो सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर या एक बॉन्ड पेयर की वजह से हुई है। ठीक है, सेम इस तरीके से अगर आप देखो तो हमारे पास यहाँ एग्जांपल और भी हैं, जैसे कि CH4 है। ठीक है, इसमें एक हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी पूरी कर रहा है, एक यहाँ से अटैच हो रहा है, तो हमारे पास सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया गया, क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड पेयर यहाँ पे इन्वॉल्व है, जैसे कि यहाँ भी एक सिंगल बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द डबल कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इज बेसिकली डबल कोवेलेंट बॉन्ड, वेरी इजी। जैसे कि हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर था, इसमें हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे। अगर 2 बॉन्ड पेयर होंगे तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, डबल लाइन से करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में हमारे पास आता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और इथीन मॉलिक्यूल। अब होता क्या है, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन आपको पता है ग्रुप 6A का एलिमेंट है, और इसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 6। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको भी कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों आपस में ये क्या मशवरा करते हैं कि काम करते हैं कि अगर मैं तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दूंगा तो मेरे पास और कम हो जाएंगे, या अगर ये इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये तो कंप्लीट हो जाएगा मगर इसके पास और कम हो जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, एक मशवरा करते हैं और बोलते हैं कि भाई चलो हम लोग अपने इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर कर लेते हैं। यानी यहाँ से तुम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लाओ, यहाँ से मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लाता हूँ, और आपस में इन चारों को शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ये रहा और दूसरा इलेक्ट्रॉन का पेयर ये रहा। यानी कि जब 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर, यानी जब 2 बॉन्ड पेयर हमारे पास किसी कोवेलेंट बॉन्ड को रिजल्ट करते हैं, फॉर्म करवाते हैं, तो वो कहलाते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल कोवेलेंट सिंगल लाइन से। ठीक है, दीज 2 सिंगल लाइंस रिप्रेजेंटिंग दैट कि ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया विद द हेल्प ऑफ 2 बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, नाउ वी हैव अनदर टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि सिंगल में सिंगल बॉन्ड था, बॉन्ड पेयर था, डबल में डबल बॉन्ड पेयर था, इसमें क्या है, 3 बॉन्ड पेयर जब हमारे पास कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो वो कहलाएगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 3 शॉर्ट स्ट्रेट लाइन से, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या आता है, नाइट्रोजन। Always remember that nitrogen have 3 bond pairs and it forms a triple covalent bond. You can clearly see here in the nitrogen molecule we have in the last shell 5 electrons. Because nitrogen is group 5A member and nitrogen has 5 electrons in its valence shell. So it requires 3 electrons to complete its octet, and this nitrogen molecule also needs 3 electrons to complete its octet because they have 5 in number and they require 3 more electrons to complete its octet. सो दोबारा ये मशवरा करते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड करवाते हैं, एक ये बॉन्ड पेयर बनाते हैं, एक ये बॉन्ड पेयर बनाते हैं, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर हमारे पास मिलते हैं, 1 2 3। और हमारे पास जो बॉन्डिंग बनती है वो क्या होती है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। गॉट माय पॉइंट? सो नाइट्रोजन ऑलवेज फॉर्म द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। Other example are basically there we have ethine, and you can see here that H is a single bond, O having a double bond, and nitrogen having a triple bond. Okay, so these are all about today's topic. So in this topic we have deal with the
Covalent bond, that what basically the covalent bond is, and how the covalent bonds are classified on different types, and what are these types is, how are these types are represented, and what are the examples of the molecule that are formed by these type of covalent bonds. So we have all deal with this in our this lecture. I hope you guys understand very well. So if students you have still facing any difficulty, any confusion regarding this topic, you can clearly without any hesitation can ask any question in the class. Inshallah, I will do correction, and I will remove your all the confusions from your mind. Inshallah. We'll meet you in the next class. Take care. Allah Hafiz.